सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, क्वेश्चन नंबर 281 श्री निहाल चंद, सेकंड नाम बोला, श्री रघुराम कृष्ण राजू, मंत्री जी, मंत्री जवाब सभा पटल पर रखिया। गीता विश्वनाथ, श्रीमती गीता विश्वनाथ, COVID-19 pandemic and successive lockdowns have aggravated the effects of malnutrition in the country, especially on children and women. Recent data tabled in the parliament show that out of 5,302 crore released for Poshan Abhiyan in the country from central funds between financial year 2019 to 21, only 2,985 crores lakhs has been utilized. Will Minister state that reasons behind such underutilization of allocated funds? Further, what steps the ministry has taken to resolve such trend of underutilization of funds? Today to speak on the issue of nutrition and the efforts between the Government of India and state governments. And regrettably, before me I find esteemed members of Parliament blocking this very essential national deliberation. It is with a sense of regret, though, I must here appeal to every member who is in the well of the House, trying to dissuade a conversation on a national issue like nutrition, like to bring to the attention of the honourable member that to avoid the spread of the pandemic, Anganwadis across the country did not operate in order to protect women and children. However, we ensured in collaboration with state governments that every 15 days, ration that was to be accrued additionally to these women and children was delivered to their doorstep. One must recognize that the Integrated Child Development Scheme and the Poshan Abhiyan are two distinct schemes. The Poshan Abhiyan, Honorable Speaker Sir, is directed towards creating a Jan Andolan with regards to nutrition. I would here like to highlight to the Honorable Member that under the Poshan Abhiyan, smartphones have been now procured. 11.5 lakhs by Anganwadis across the country. Poshan Tracker pronounced by the Government of India. A digital solution now tracks 9 crore beneficiaries, including 7.5 crore children. Our endeavour is to ensure all health solutions are given to these children and women in the care of the Anganwadi services and system. प्रताप चंद सारंगी, ऑनरेबल स्पीकर सर, कुपोषण में ग्रस्त लोगों का जीवन कितना दुर्विसह हो जाता है हम सब जानते हैं। सर, आंगनवाड़ी ICDS वगैरह में सर जो पोषण अभियान चलता है ये उड़ीसा में बिल्कुल निरर्थक हो गया है। सर, हमने CDPO को बुला करके कई आंगनवाड़ी केंद्र में टेस्ट करवाया। सर, बादाम का लड्डू 50% कम है, सूजी पैकेट में कम है और लेस न्यूट्रिशन वाला चीज़ें देते हैं, बिल्कुल एडल्ट्रेशन होता है। सर, एक CDPO का करप्शन को हमने पकड़ा। सर, तदंत के उपरांत ADM ने रिपोर्ट दिया 2,89,000 की सामग्री खरीदा गया और इसमें 1,60,000 20 रुपीज़ का मिसअप्रोप्रिएशन हुआ। सर, ADM रिपोर्ट देने के बाद उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मैंने कई लेटर लिखा सर, चीफ सेक्रेटरी को, सबको लिखा, कुछ फल नहीं हुआ। सर, अभी 2 आंगनवाड़ी केंद्र में
हमने सीडीपीओ को भेज करके इसका जांच करवाया, कुछ भी नहीं हुआ। 10-10 हजार रुपया लेकर के अपॉइंटमेंट देते थे सर, गरीब पितृहीन बालिका को भी अपॉइंटमेंट नहीं दिया सर। इसलिए हमने इसको विजिलेंस के द्वारा पकड़वाया और अरेस्ट होकर के सुपरवाइजर अंदर में है सर। ऐसा चलता है। और इन जो आंगनवाड़ी जो संस्था इनको फूड मटेरियल सप्लाई करते हैं सर, इनको जो एडल्ट्रेशन करते हैं, जो कम देते हैं, इसको प्रमोट करते हैं हमारे सरकार उड़ीसा में सर। ये बहुत हम असहाय हो गए हैं, हमको थोड़ा प्रोटेक्शन चाहिए। ये करप्ट एजेंसी को बंद करना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, रेस्पॉन्स फिक्स करना चाहिए और उनको जेल भेजना चाहिए सर। बिल्कुल ये बर्बाद कर देते हैं सरकार का पोषण स्कीम को। नमस्कार। The charges that have been pronounced by the honorable member in this house are very grave in nature, sir. While it is the privilege of the honorable member of parliament that all government schemes are implemented within protocols and limits of the law, are implemented in the best of spirits, what the honorable member espouses about the state of affairs in his home state is a cause of great concern for me as minister. That the honorable member of parliament is aggrieved with the fact that adulteration was caught by him and associated organization within the state that he represents. I will, sir, take the aggrievement of the honorable member and convey it to the state government, because it is the state government which is constitutionally and administratively responsible for the implementation of the project. However, through you, sir, I will appeal to every member of parliament that the Ministry of Women and Child Development on the 13th of January has given a notification to every state government as to how the ICDS and portion systems need to be implemented, which includes checking of food in FSSAI and NABL accredited labs. It directs state governments to procure keeping in mind GFR and CBC rules. If any state government is found in violation of the rules, appropriate action will be taken by the ministry. श्रीमती जी माधवी। Thank you, sir. The ministry has spent over 10,000 crores on its portion tracker, which records real-time data on malnutrition and severe acute malnourished children in each Anganwadi. However, nutrition data and indicators are not available in public domain. What steps has the ministry taken to make such data and indicators collected through the portion tracker available in public domain? Sir, the data that we deal with within the portion tracker to maintain the privacy of women and children in our country, and especially minor children whose data should not be publicly made available, is an issue which is close to my heart. My pledge is to honor the privacy of women and children who are serviced by the Government of India in collaboration with state governments across the Anganwadi systems in the country. However, regrettably, sir, I must here highlight to the honorable member that the number that she prescribes for the formulation of the portion tracker is a wrong number. I believe this statement has been pronounced by certain organizations and vested interest parties with regards to the portion tracker, which seeks to bring about transparency. My appeal through you, sir, to the honorable member is this: technology begets transparency. Every member of parliament should support the government's endeavor to bring about transparency and protect the privacy of our children and lactating and pregnant women. सर, ये अगर प्रश्न काल चल रहा है और ये लोग इतना हंगामा कर रहे हैं तो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। और माननीय मंत्री जी से मैं एक पूछना चाहता हूं कि गरीब और पिछड़े और दलित
और अकलियतों में बहुत गरीब जो लोग हैं उनके लिए क्या सरकार कोई ऐसा प्रोविजन कर रही है जो जिले और तहसील स्तर पर ले जाकर के उन लोगों को जागरूक करा जा सके और जिससे उनको एक्चुअल में फायदा नीचे तक पहुंच सके जमीनी हकीकत में? तो मंत्री जी ये बताने की कृपा करें। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया वो एक ओवरआर्चिंग प्रश्न है, मात्र मेरे मंत्रालय से संबंधित नहीं है। लेकिन मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि आंगनवाड़ी सिस्टम्स में पोषण ट्रैकर के माध्यम से जो 9 करोड़ लाभार्थी बच्चे और महिलाएं हैं वो गरीब परिवारों के हैं, संपन्न परिवारों के नहीं है। इसलिए भारत सरकार गरीब परिवारों की, हमारी बहनों का, भारत सरकार गरीब परिवारों के बच्चों का संरक्षण किस प्रकार से प्रदेश की सरकारों के साथ कर रही है वो पोषण ट्रैकर पर प्रतिबिंबित होता है। साथ ही कहना चाहती हूँ महोदय कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गरीब परिवारों की बहनों को हम उनकी प्रेगनेंसी के दौरान 5,000 रुपए सीधा उनके बैंक के खाते में देते हैं। 2 करोड़ से ज्यादा बहनों को 8,000 करोड़ तक का लाभ मात्र और मात्र एक स्कीम के अंतर्गत हुआ है। आंगनवाड़ी प्रांगणों में महिला और बाल विकास मंत्रालय को 20,000 करोड़ से ज्यादा का भारत सरकार की ओर से व्यय प्रदेश की सरकारों के प्रति हुआ है, जो मात्र और मात्र गरीब परिवारों की बहनें, बेटियां और बच्चों को समर्पित है। जगदम्बिका पाल जी। Thank you very much. I would like to ask a supplementary question through you, Honorable Minister. May kindly brief because aspirational districts, even 8 districts in UP, and one of the most ingredient for malnutrition is secondary child protection. Already, Minister in reply through National Commission for Protection of Child Rights. So what is the number of Siddharthnagar and Balrampur Shravasti? अगर ये है तो इस सर्वे के बाद जो संख्या आई है उनके लिए सरकार क्या उपाय कर रही है, मैं जानना चाहता हूँ। धन्यवाद। So as I stand today to answer through you the honorable member's query, I am blocked by certain gentlemen who have placards in their hands. If they truly believe in servicing the needs of poor women and children in our country, my request to them is to ensure that I speak for the women and children of this country to hear how dedicated member of parliaments would wish to discuss issues pertaining to them. And those gentlemen who belong specially to a particular party, one of their representatives yesterday said and made remarks about women which need to be condemned by every public representative in Karnataka. If you truly believe in the cause of women, first stand here and denounce that legislator who says that if you are raped as a woman in this country, you should enjoy it. Those men who stand in this well today, go back to your political organization and first bring to justice such a man, and then we will see who speaks for women and children in this country. Insofar as Jagdambika Palji's question about aspirational districts, sir, I must here highlight that Saksham Anganwadi, a special initiative of the Ministry of Women and Child Development, will look at bettering infrastructure for aspirational districts and Anganwadi services within them. This involves the districts that has just been enunciated by the Honourable Member. श्रीमती नवनीत राणा। महिला विभाग, महिला एवं बाल कल्याण विकास मंत्रालय द्वारा दिनांक 13/1/2021 को जारी निर्देशों तथा दिनांक 28/6/2021 के गैजेट अनुसूची एवं दिनांक 29/6/21 के कार्यालय ज्ञापन में भारत सरकार द्वारा
दिया गया निर्देशों के अनुसार पूर्वक पोषण आहार के रूप में वितंडित युवती तकनीकों एवं पोषण मानों के अनुसार लाभार्थियों को भोजन उपलब्ध कराने हैं तथा कच्चे राशन उपलब्ध करने को स्पष्ट मना किया गया है, किंतु राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के दिशा निर्देशों के विपरीत 1 वर्ष से नियंत्रण कच्चा राशन दिया जा रहा है तथा भारत सरकार के उपयुक्त निर्देशों की पालन नहीं किया रहे हैं। फिर भी भारत सरकार द्वारा इस संबंध में कोई कदम उठाए गए नहीं हैं तथा राज्य सरकार को बजट देने जारी रखा गया है। क्या राज्य सरकारों द्वारा भारत सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करने के उपरांत भी भारत सरकार बजट देना जारी रखी है? क्या भारत सरकार उन राज्यों सरकारों के विरोध कोई कार्रवाई करने की विचार रखते हैं जिनके द्वारा भारत सरकार के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्या कार्रवाई है? तथा माननीय सदस्य ने 13 जनवरी के जिस नोटिस के संदर्भ में अपनी चिंता व्यक्त की, महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत हमने सभी राज्य की सरकारों को आदेशित किया और पत्राचार के माध्यम से एक बार फिर उन्हें आगाह किया कि टेक होम राशन रॉ राशन नहीं हो सकता और टेक होम राशन का प्रोक्योरमेंट जीएफआर रूल्स और सीवीसी के गाइडलाइंस के अंतर्गत ही संभव है। अगर कानून का उल्लंघन होगा तो राज्य की सरकार इस कानून के उल्लंघन में जो प्रोक्योरमेंट करेगी, ऐसी स्थिति में महिला और बाल विकास मंत्रालय उस पैसे की पूर्ति नहीं करेगा। नंबर 282 बी चंद्रशेखर। क्वेश्चन नंबर 282 The Notaries Amendment Bill 2021 proposes to digitalize the whole notarization process to prevent misconduct and safeguard the interest of the general public. In the ministry also planning to provide any specific training of support to notaries for this proposed digitalization of notarial work. माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने नोटरी के बारे में प्रशिक्षण शिविर और डिजिटल करने के बारे में पूछा है, संदर्भ में मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूँगा कि नोटरी अधिनियम 1952 नोटरी के पैसे को नियंत्रित करता है। नोटरी नियम 1956 में नोटरी के रूप में नियुक्त किए प्रक्रियाओं, योग्यताओं, नियुक्त नोटरियों के प्रैक्टिस संबंधी प्रमाण पत्र जारी करने और उनका नवीनीकरण, नोटरी के कार्य, अनुशासनात्मक कार्रवाई, शुल्क अनुसूची से संबंधित मामलों का प्रावधान है। जहाँ तक डिजिटल वाला मामला है, अभी उस पर विभाग विचार नहीं कर रहा है और जहाँ तक नोटरी के प्रशिक्षण का है, ऐसा कोई प्रशिक्षण नहीं हो रहा है, लेकिन ऑनलाइन जो लोग आवेदन विज्ञापन निकलता है, उस राज्य में कितनी नोटरियन की आवश्यकता है, विज्ञापन निकलता है, लोग आवेदन करते हैं, आवेदन की कुछ प्रक्रियाएं हैं, कुछ मेरिट हैं, कुछ क्वालिफिकेशन है, उसके बाद साक्षात्कार होते हैं और साक्षात्कार आधार पर उनका चयन होता है। सदस्यगण, 1 मिनट। मान्य सदस्यगण, लोकसभा की किसी भी प्रॉपर्टी के साथ कुछ भी घटना घटी तो इसकी जिम्मेदारी मान्य सदस्यों की होगी। मैं आपका आग्रह कर रहा हूं, वरिष्ठ मान्य सदस्य कुर्सी पर हाथ लगा के नहीं बैठे। मान्य वरिष्ठ सदस्य, अगर लोकसभा की किसी भी प्रॉपर्टी डैमेज हुई तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। मैं आपको आग्रह करना चाहता हूं, फिर मैं आपको आग्रह करना चाहता हूं, लोकसभा की किसी भी प्रॉपर्टीज को डैमेज करने का प्रयास किया तो उसकी जिम्मेदारी आप पर होगी।
ये केरल वाले सब जानते हैं इस विषय को। माननीय सदस्य, In the Notaries Amendment Bill, the government has limited the term of notaries to 15 years to allow younger eligible candidates to enter the field. But this will negatively affect the legal practitioners who practice notary as their sole professions. Is the ministry considering a proposal to make any experimentation in such cases? अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक नोटरी का मामला है, युवा हो इसमें कोई एज फैक्टर नहीं है। जब जिस राज्य में उनकी आवश्यकता के अनुसार नोटरियों की रिक्तियाँ होती हैं, ये नोटरी दो प्रकार के होते हैं। राज्य सरकार नोटरी की नियुक्ति करती है और केंद्र सरकार अपने कोटे से नोटरियन की नियुक्ति करती है। तो जब विज्ञापन केंद्र सरकार का होता है तो उसमें लोग आवेदन करते हैं और उसमें सामान्य नियम ये है कि जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं उनकी प्रैक्टिस उनकी अलग योग्यता है। इसमें आरक्षण नहीं है क्योंकि ये नौकरी नहीं है, लेकिन अन्य कैटेगरियों में उसकी प्रैक्टिस में थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है, जिस प्रकार से बैकवर्ड के लिए या शेड्यूल कास्ट के लिए या ट्राइबल्स के लिए या दिव्यांगजनों के लिए। तो हमारा विभाग विचार कर रहा है कि अभी तक ये है कि एक बार कोई नोटरियन हो जाता है तो 5 साल बाद के अंदर उसको हम रिन्यू करते हैं, उसको आवेदन करता है और इस प्रकार से 5-5 साल के उनको टेन्योर मिल जाते हैं। लेकिन हम लोग विचार कर रहे हैं कि इसमें थोड़ा संशोधन किया जाए और इसको 2 कार्यकाल या 3 कार्यकाल तक सीमित करने का विभाग विचार कर रहा है। काका पाटिल, संजय काका पाटिल। क्वेश्चन नंबर 283, डॉक्टर महेश शर्मा। क्वेश्चन 283 सर। उत्तर सभापटल पर रख दिया है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, मैं भारत सरकार को, हमारे मंत्री जी को और हमारे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद और बधाई देता हूं कि स्वास्थ्य के विषय में जो कार्य पिछले 70 वर्षों में हुआ और पिछले 7 वर्षों में हुआ वह एक गुणात्मक है। और मैं चिकित्सा पेशे से जुड़ा रहा हूं, जहां 6 एम्स की हमारी संख्या थी, अब वह संख्या 22 हो गई है। MBBS की सीटें जहां 51,000 थी वह अब 88,000 हुई हैं। 74% का इजाफा हुआ है MBBS की सीट में। MD की सीटें जहां 31,000 थी अब 55,000 हुई हैं, 78% का इजाफा हुआ है। मेडिकल कॉलेज 209 नए मेडिकल कॉलेज बने हैं। आयुष्मान जैसी योजना जहां देश की 50% आबादी को मुफ्त निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मिल रही है। नेशनल मेडिकल कमीशन के माध्यम से नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। इन सब के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना बनाई है। मैं बधाई देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं इस जरूरत को। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इन कॉलेजों में फैकल्टी की कभी कमी रहेगी, क्या फैकल्टी की कमी का व्यवस्था भी की गई है? और दूसरा सवाल, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी गौतम बुद्ध नगर नोएडा, जहां की जनसंख्या 50 लाख से अधिक है, उस जनसंख्या को देखते हुए दिल्ली का एम्स बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो चुका है, उस पर बोझ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ पीडियाट्रिक्स की एक भवन को एम्स की एक समिति ने देखा भी था। क्या गौतम बुद्ध नगर नोएडा में एक नए एम्स की स्थापना और या पीडियाट्रिक इंस्टीट्यूट को लेने की योजना है? कृपया माननीय मंत्री जी अवगत कराएं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कि सदस्य ने पूछा है कि कोई नई सीट्स उपलब्धि हुई है कि नहीं, मैं आपके माध्यम से ये अवगत कराना चाहती हूँ
कि हमारी सरकार ने लगातार प्रयास किया है कि मेडिकल सुविधा को लेकर, चाहे वो एजुकेशन हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसमें लगातार प्रयास करते हुए PMSSY के अंतर्गत एम्स नए खुलवाने हो, जो कि आज 22 नंबर में खुलने जा रहे हैं, अपग्रेडेशन ऑफ मेडिकल कॉलेज हो जिससे कि सुविधा मिले एजुकेशन में और पेशेंट को, और नए मेडिकल कॉलेज बने। उसमें आज देखा जाए तो कार्डियोलॉजी के DM सीट्स जो पूछा गया है वो 464 है, नेफ्रोलॉजी के 208 है, न्यूरोलॉजी के 341 है और MD सीट्स जो ऑन्कोलॉजी के लिए है वो 396 है। इसमें लगातार वृद्धि हुई है। UG सीट्स 62% बढ़े हैं, PG सीट्स 78% बढ़े हैं। और जहाँ तक कि यूपी के बारे में आपने सवाल उठाया है, मैं माननीय सदस्य को ये कहूँगी कि हमारी सरकार ने लगातार सभी राज्यों में अच्छा प्रयास किया है। आज यूपी में हमारे 27 नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं, 2 एम्स बनने हैं और GMC अपग्रेडेशन में 11 कॉलेज भी समाविष्ट है। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपने जो विश्वास दिलाया है, हमें पूरा विश्वास है कि सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो कार्य कर रही है। लेकिन मैं चाहूंगा, क्योंकि दिल्ली की एम्स पर बहुत ज्यादा बोझ है, तो माननीय मंत्री जी कृपया इस प्रस्ताव पर विचार करें कि अब दिल्ली के पास नोएडा में एक एम्स की व्यवस्था, नए एम्स की व्यवस्था और जो पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट वहां बना हुआ है, जिसको कि माननीय एम्स की समिति उसको देख चुकी है, उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कि आपने प्रयास किया है PG सीट्स को लेके है या फिर एम्स की सुविधा बढ़ाने हेतु, जरूर हमारे माध्यम से प्रयास होगा। क्वेश्चन नंबर 284 गोपाल ठाकुर जी। माननीय मंत्री जी, जवाब सभा पटल पर रखा गया है। माननीय सदस्य। जय माननीय अध्यक्ष महोदय, हम मिथिला क्षेत्र के दरभंगा संसदीय क्षेत्र से आता हूं और मेरे संसदीय क्षेत्र में एक भी उद्योग का सर्वथा अभाव है और जिसके कारण यहाँ के लाखों लोग हर वर्ष रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों और महानगरों में पलायन करते हैं। अध्यक्ष महोदय, उत्तर बिहार का प्रमुख शहर दरभंगा, जहां हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी दरभंगा में एम्स, एयरपोर्ट, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, IT पार्क, दोहरीकरण, विद्युतीकरण करने का काम किया है, वहीं पर हमारी सरकार औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने हेतु रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के द्वारा विभिन्न राज्यों में प्लास्टिक पार्क स्थापित कर रही है, लेकिन बिहार में एक भी प्लास्टिक पार्क महोदय नहीं है। आपके माध्यम से आदरणीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री से मांग करता हूं कि दरभंगा संसदीय क्षेत्र में प्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाए ताकि इस पिछड़े हुए क्षेत्र में औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके और हजारों लोगों को इससे रोजगार मिल सके। माननीय मंत्री जी से मैं मांग करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपका माध्यम से मैं माननीय सदस्यों को जवाब देना चाहता हूं कि प्लास्टिक पार्क भारत सरकार 10 को मंजूरी दी है, उसमें से 8 काम चालू है और 2 को इन प्रिंसिपल हमने अप्रूवल दिया है। प्लास्टिक पार्क से माध्यम से एक इकोसिस्टम डेवलप होकर के स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर डेवलप करके कॉमन फैसिलिटीज़ थ्रू क्लस्टर डेवलपमेंट के अप्रोच से हम लोग भारत सरकार करती है। इससे लाभ होती है कि वहाँ पर निवेश आए
उत्पादन बढ़े और निर्यात को बढ़ावा मिले और रोजगार का अवसर भी मिले, तो भारत सरकार प्लास्टिक पार्क के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार से एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के माध्यम से उसको गठित करके भारत सरकार 50% की अनुदान देती है, ताकि उसका सीलिंग मैक्सिमम 40 करोड़ हो सके। ऐसे करके अभी ऑलरेडी तमिलनाडु में चालू है, मध्य प्रदेश में चालू है, उड़ीसा, असम और झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ में, और बिहार से अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है। तो इसी के लिए अभी ये 10 का हम निर्माण करने का कार्य हमने चालू रखा है। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय जी से आपके माध्यम से जानना चाहते हैं, जो अभी तक बिहार में प्लास्टिक पार्क का निर्माण हो, इसके लिए केंद्र सरकार क्या सब की है? नहीं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य का जो चिंता है वो चिंता बहुत ही होगा, लेकिन अभी तक वहाँ की सरकार की कोई प्रस्तावना आई नहीं और हमारा प्रपोजल 10 अब तक चालू है और सभी हम इस पर हम निर्माण कार्य करने के बाद ही हम आगे सोच सकते हैं। धन्यवाद अध्यक्ष। माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण समय होता है और इस समय आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन आप नई परंपरा डाल रहे हैं, नारेबाजी और तख्तियों की। ये परंपराएं उचित नहीं है, सदन की गरिमा के अनुकूल भी नहीं है। आपको देश की जनता ने चुनकर भेजा है सदन में उनके सवालों को उठाने के लिए। मेरा आपसे आग्रह है, कृपया अपनी अपनी सीट पर विराजें ताकि प्रश्नकाल ठीक से चल सके। आप नहीं चलाना चाहते, आप सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते, महत्वपूर्ण मुद्दों पर सवाल नहीं उठाना चाहते, सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।